Hello friends, Prerna this side from iNeuron. So we were discussing about limits and how we can solve a question on limit using different methods. So we have gone through few methods and we were doing a rationalization method. So we'll start from question number 5 today since we have completed till question number 4. So let's start. Question number 5 is limit x tends to 7. 4 minus under root 9 plus x divided by 1 minus under root 8 minus x. अब इसमें अगर आप x की वैल्यू 7 पुट करते हो तो ये 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 is 0. At the denominator if it is 0, at the denominator if it is 0, then it is infinity. Again it is indeterminate form. So we have to rationalize it first. So it will give limit x टेंस टू 7. ये आपको हर स्टेप में लिखना है जैसा मैंने कहा था. 4 माइनस अंडर रूट 9 प्लस एक्स बाय 1 minus under root 8 minus x. So first of all I am rationalizing the denominator. So I'll multiply it by 1 plus under root 8 minus x, 1 plus under root 8 minus x. For numerator it is 4 plus under root 9 plus x divided by 4 plus under root 9 plus x. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 7. ये देखिए 4 minus root 9 plus x into 4 plus root 9 plus x is a minus b, a plus b form, which is a square minus b square. A square which is 4 square 16 minus root 9 plus x का square हो जाएगा 9 plus x. So it is 9 plus x. Okay. So we are left with 1 plus under root 8 minus x at the numerator. Okay. Similarly, at denominator, 1 minus under root 8 minus x, 1 plus under root 8 minus x will give 1 minus 8 minus x. Okay. And we are left with 4 plus under root 9 plus x. Got it? Now, if I'll solve it, it will give 16 minus 9 minus x. So it is 7 minus x. Okay. So at the numerator it is 7 minus x. And at the denominator it is 1 minus 8 plus x. That is minus 7 plus x. So we can write minus, if I'll take common minus, it is 7 minus x again. Okay. Don't forget to write limit x tends to 7. Okay. Now here it is 1 plus under root 8 minus x by 4 plus under root 9 plus x. Okay. So on cancelling out it will give minus limit x tends to 7 1 plus under root 8 minus x by 4 plus under root 9 plus x. Got it? So it will give minus, here it is 1 plus under root 8 minus 7, that is 1. 1 plus 1 is 2. And at the denominator 9 plus 7, 16. Root of 16 is 4. 4 plus 4, 8. So it is minus 1 by 4. So this is the answer. Got it? Okay. Moving on to question number 6. Question number 6 is again a rationalization question. I am rationalizing it directly. Okay, so it is under root 3x minus 2 plus root x plus 2 and again under root 3x minus 2 plus root x plus 2. Okay, now at the numerator it is x square minus 4, which can be written as x plus 2, x minus 2. Okay, and then we have under root 3x minus 2 plus root x plus 2. Got it? At the denominator it is a minus b, a plus b, which is a square minus b square. A square is root 3x minus 2 square, that is 3x minus 2 minus x plus 2. ठीक है ना? अब देखिए जो डिनोमिनेटर है इसको आप अगर सॉल्व करिएगा 3x minus 2 minus x minus 2. So it is 2x minus 4. And if I'll take common 2, it will give x minus 2. Okay. So directly at the denominator, I am writing 2x minus 2. And numerator is x plus 2, x minus 2
3x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जैसे ही आपका नेगेटिव वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व। So now we have only plus things, no? So if I'll put the value of x, then it will give 2 plus 2 4 by 2. Okay, now it is 3 2s are 6, 6 minus 2 4, root of 4 is 2 plus under root x plus 2, 2 plus 2 is again 4 and square root of 4 is 2. Okay, so it is 2 into 2 plus 2 is 4, 8 is the answer. Okay, now we have a next method, that is evaluation by using some standard limit. So we will discuss some standard limit. So this is the first one. In this it says limit x tends to a, limit x tends to a. If I'll write it here, ये actually एक theorem है और इसको हम लोग directly use करते हैं, इस theorem को prove करने नहीं आता है, ठीक है। सो अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू a है एंड आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, यहाँ जो वेरिएबल है यहाँ भी वही होना चाहिए, यहाँ जो कांस्टेंट है यहाँ भी वही होना चाहिए, देन इनका सोल्यूशन होता है n a टू द पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यहाँ यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे यूज कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में है या इस फॉर्मेट में कन्वर्टेबल है, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली उस फॉर्मेट में तो है नहीं, तो आप क्या करिएगा, आप लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए हमारा फॉर्मेट क्या था उसको माइंड में रखिए, हमारा फॉर्मेट था एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए एंड लिमिट आपका x टेंड्स टू a था, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिए। अब सोचिए कि क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्टेबल है। अगर आप इसे 1 माइनस एक्स टू द पावर n लिखें और इस 1 को आप 1 टू द पावर n मान सकते हैं, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, सो इफ आई राइट 1 टू द पावर n देन इट्स ओके। अब देखिए फॉर्मेट का कहना है यहाँ जो होगा टू द पावर n यहाँ वही होना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स है तो यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज अ माइनस एंड फिर यहाँ जो कांस्टेंट है यहाँ पर वही होना चाहिए, तो यहाँ 1 टू द पावर n है तो 1 होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए। बट अपने मन से हम क्वेश्चन तो चेंज कर नहीं सकते, तो देखिए ये है क्या एक्चुअली, 1 माइनस एक्स माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस एक्स, यानी क्वेश्चन को हमने सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर में, तो आप एक माइनस बाहर भी लगा दीजिए यहाँ पर। अब ठीक है, ठीक है ना, ये क्या है, ये माइनस एक्स ही है। अगर आप इस ब्रैकेट को अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल हैव ओनली माइनस एक्स। सो अगर आप नीचे के एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक माइनस बाहर भी दे दो, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये उसी फॉर्मेट में आ गया है, देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, n a n माइनस 1, n a इज 1 टू द पावर n माइनस 1। अब 1 का कुछ भी पावर लो वही रहेगा, तो ये हो गया आपका माइनस n। ओके, सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उस फॉर्मेट में नहीं था, ये कन्वर्टेबल था, ठीक है, वो बड़ा बेसिक होता है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 टू द पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/3। देखिए n तो आपका सेम है, ठीक है, 5/3 x के प्लेस पे x प्लस 2 है एंड a के प्लेस पे a प्लस 2 है, सो डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए। तो क्या आप इस x में प्लस 2
फिर -a -2 कर सकते हो। ये एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये दोनों टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विथ x -a ओनली, है ना। तो क्वेश्चन को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने 2 को ऐड भी किया है एंड सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x plus 2 to the power 5 by 3 minus a plus 2 to the power 5 by 3 divided by x plus 2, and if I'll put a bracket here it will be a plus 2, और ये ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन के इस फॉर्मेट में आ गया। आपका क्वेश्चन ऑलरेडी इस फॉर्मेट में आ चुका है, जहां आपके x के प्लेस पे x प्लस 2 है एंड a के प्लेस पे a प्लस 2 है। फॉर्मेट वही है, समथिंग पावर n माइनस समथिंग पावर n, एंड इन्हीं दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप जब फॉर्मूला लगाइएगा तो n इज 5/3, a आपका a प्लस 2 है, n -1, 5/3 -1, so it is nothing but 2/3. Okay, so this is the answer. Got it? तो ये आपका एक नया मेथड है, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट में कन्वर्टिबल होगा then we can try this. Now in the next question it is limit x tends to 2 x to the power n minus 2 to the power n by x minus 2 is equal to 80 and n belongs to natural number. Find the value of n. Okay, so the question is limit x tends to 2 x to the power n minus 2 to the power n by x minus 2 is equal to 80. So simply this is of the form xn minus an by x minus a, whose formula is n a n minus 1. Okay, and RHS is 80 only. Got it? Now it is n 2 to the power n by 2 to the power 1. Can we write it like this? Now it is 80. n 2 to the power n is equal to 2 into 80, that is 160. Okay, अब देखिए यहाँ पर जो है n, यहाँ पर भी वही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको उसी तरह से इसे ब्रेक करना है। आई एम टेकिंग द एलसीएम, and one more 2 is here. Okay, so it is 2 to the power 5 and 5. So I can write n into 2 to the power n. Similarly 5 into 2 to the power 5. अब देखिए ये दोनों एक फॉर्मेट का है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 5 होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ आपका n क्या हो गया, 5, n इज इक्वल टू 5। LHS एंड RHS सेम फॉर्मेट में आ गए हैं, 5 into 2 to the power 5, n into 2 to the power n, which means n is 5. Okay, so this is the solution of question number 3. Now moving on to question number 4. देखिए question number 4 देख के भी आपको पता चल रहा है कि उस फॉर्मेट में कन्वर्टिबल हो सकता है। So what we can do here, it is limit x tends to a, ठीक है, x 2/3 minus a 2/3. Okay, and it is x 3/4 minus a 3/4. अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी डिवाइडेड बाय x minus a. Okay, so I am writing it, dividing numerator, okay, and denominator by x minus a. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। दिस विल गिव लिमिट x टेंड्स टू a x to the power 2/3 minus a to the power 2/3 divided by x minus a, and x to the power 3/4 minus a to the power 3/4 by x minus a. ठीक है, अब अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे इंडिविजुअली लिमिट लगाइएगा तो ये आपके फॉर्मेट में आ जाएगा। So it is x to the power 2/3 minus a to the power 2/3 by x minus a, and at the denominator it is again limit x tends to a x to the power 3/4 minus a to the power 3/4 by x minus a. ठीक है ना, अब इसमें देखिए न्यूमरेटर विल गिव n, a
n minus 1, 2 by 3 minus 1, it is 2 minus 3 by 3 minus 1 by 3, ठीक है ना. And at the denominator it is again n a n minus 1, 3 by 4 minus 1 by 4. Got it? So it is 2 by 3 into 4 by 3. Okay, and a minus 1 by 3 plus 1 by 4. ये तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो. बस यही हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. गॉट इट? सो ये सारे क्वेश्चंस उस फॉर्मेट में कन्वर्टेबल थे, तो ये आपको सोचना होगा कि कन्वर्टेबल है या नहीं है. Moving on to question number 5. Question number 5 is again similar. Here it is limit x cube minus a cube by x minus a and x4 minus 1 by x minus a. Find all possible values of a. So from LHS it is n a n minus 1. Okay. And from RHS we can consider it as 4, isn't it? n a n minus 1. Okay. So it is 3a square is equal to 4. A square is equal to 4 by 3. A equal to plus minus 2 by root 3. So there are two values of a. One is 2 by root 3 and another is minus 2 by root 3. ठीक है? Moving on to question number 6. ये भी आपका similar ही है. Find the value of k if limit x tends to 1, x to the power 4 minus 1 by x minus 1 is equal to limit x tends to k, x cube minus k cube by x square minus k square. So left hand side I am writing limit x tends to 1, x4 minus 1 by x minus 1. Okay. And on that side it is limit x cube minus k cube by x square minus k square and here it is x tends to k. अब देखिए ये तो सिंपली उसी फॉर्मेट में है, एक्स एन माइनस 1 का पावर 4 आप कंसिडर कर सकते हो एंड हेयर इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म. सो इसमें क्या करना होगा आपको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x माइनस के से डिवाइड करना होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. ठीक है ना. तो इट विल गिव लिमिट x tends to 1, x to the power 4 minus 1 to the power 4 by x minus 1 and here if I divide numerator and denominator by x minus k then it is x square minus k square by x minus k. Okay. Okay, this is the format. Now here we can write n a n minus 1. Okay, and here it is, if I'll put limit on this part it will give n a n minus 1 and here it will give n a is k, here 2 minus 1. Got it? Now it is 4 is equal to 3k square by 2k. ठीक है ना. तो 4 into 2 by 3 is equal to k. Okay, so k is 8 by 3. Got it? So all questions are different. हर question में कुछ ना कुछ आपको different जरूर नजर आएगा. ठीक है ना. देखिए इसमें आपको इक्वेशन गिवन था, इसके पहले हमने जितना भी किया था, एंड दिस वन ऑल्सो सॉल्विंग था. ठीक है, कहीं इक्वेशन दिया है कहीं सॉल्विंग है. इसमें दोनों डायरेक्ट फॉर्मेट में है एंड इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मेट में है बट ये कन्वर्टेबल टू दैट फॉर्मेट है. तो हमने इसे पहले कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस k. Okay, moving on to next method of evaluation of algebraic limits at infinity. अब देखिए जब ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है ना तो क्वेश्चन डायरेक्टली ही इंडिटरमिनेट फॉर्म में होता है. इन्फिनिटी देख के ही आपको टेंशन हो जाता है कि अब ये इन्फिनिटी जैसे ही पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा सॉल्यूशन इन्फिनिटी देगा. सो आपको किसी भी तरह इस इन्फिनिटी को हटाना है. इसके पहले हमने जितने भी मेथड किए हैं वो भी अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उनमें पिछले मेथड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो यहाँ रूट इन्फिनिटी, सिंपली ये इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इन्फिनिटी ही हो जाएगा.
ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि इन्फिनिटी के लिए मैं एक रूल बताऊंगी, उसको आप फॉलो करोगे। बट अगर ये टॉपिक ना लिखा हो, ये क्वेश्चन सीधा लिखा हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि अगर दो रूट्स हैं, सम या डिफरेंस है, तो हम जानते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो ठीक है, पहले रैशनलाइज ही करेंगे। तो जो मेथड पहले आता है एक्चुअली में वही एप्लीकेबल होता है पहले। ठीक है, तो मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ। ये होगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी रूट एक्स अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस सॉरी माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स से डिवाइड किया मैंने एंड मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है ना, ओके। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या बच जाता है, न्यूमरेटर में आपका एक रूट एक्स तो रहेगा ही। ठीक है, नाउ इट इज a माइनस बी a प्लस बी, सो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट x प्लस सी माइनस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में जो है आपका वो रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो आपका क्वेश्चन में रह क्या गया है, देखिए न्यूमरेटर में क्या है, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर में आपका c रूट x है, and what is at the denominator, denominator it is under root x plus c plus root x। ठीक है, अब देखिए ये तो मुझे क्वेश्चन देख के समझ में आया कि रैशनलाइज करना है, कर दिया, बट दिमाग में आपके ये है कि ये टेंस टू इन्फिनिटी है, रैशनलाइज करने के बाद भी आपको कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, अगेन इट इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा, जब भी आपके क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होगा ना, तब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब जहां जहां आपका वेरिएबल है उसे डिवाइड करना होगा। देखिए यहां पर मैं क्या कर रही हूं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट एक्स। ओके, सो इट विल गिव c रूट एक्स बाय रूट एक्स 1 हो जाएगा, एंड एट द डिनोमिनेटर ये अंडर रूट है तो यहाँ x बाय एक्स हो जाएगा 1, एंड हेयर इट इज c बाय एक्स, अंडर रूट है ना, and here it is root x by root x, that is 1. Now if I'll put the value of infinity, so it will give c by under root 1 plus c by infinity, anything by infinity is 0 plus 1, so it is c by 2 only. ठीक है, तो देखिए ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म में सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, यही एक हिंट था। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टोरियल्स है, अगर आप फैक्टोरियल्स के बारे में जानते हैं तो ठीक है, ये आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में पढ़ा है, एंड इफ नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसका पार्ट समझा देती हूँ जो इसमें एप्लीकेबल होगा। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली मैथ्स में क्या होता है ना कि हर चैप्टर में दूसरे चैप्टर घुसते हैं, तो हर चैप्टर में आप जब सारे चैप्टर पढ़ लोगे तभी आप हर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर सॉल्व करते हैं तो उसमें कहीं ट्रिगो आता है, कहीं परमुटेशन आता है, कहीं बाइनोमियल आता है। ठीक है ना, तो आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इफ आई से 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल, ये दोनों ही सिंबल है फैक्टोरियल का। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 7 से डिक्रीज होते हुए आपको एंड तक जाना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर ये 6 फैक्टोरियल है तो आपको 6 to 1 जाना है, अगर ये 19 फैक्टोरियल है तो आपको 19 to 1 जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी वैल्यूज डिक्रीजिंग वैल्यूज टिल 1। नाउ इफ आई वांट टू स्टॉप इट, अगर ये जो सीरीज है इसको मैं रोकना चाहूँ तो आप 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी कह सकते हो, या फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी कह सकते हो। ठीक है ना, या फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इस सीरीज को, इस डिक्रीजिंग सीरीज को आप कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, अगर ये n के टर्म्स में होता है, मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है n+1 फैक्टोरियल, तो पहले जो नंबर है वो लिखते हैं, तो n+1 लिखा,
ना उससे एक कम n+1 से एक कम क्या होगा n, और एक कम n-1, ठीक है, फैक्टोरियल। तो आप जहां चाहे सीरीज को रोक सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग फैक्टोरियल्स। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए यहाँ सबसे बड़ा कौन है, n+1 है, यहाँ n है, यहाँ n+1 एंड हेयर n फैक्टोरियल ओनली। सो ये आपका सबसे बड़ा। तो देखिए न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दीजिए, n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल को n+1 इंटू n फैक्टोरियल भी तो बोल सकते हैं, यहाँ पर भी तो रोक सकते हैं ना। देखिए मैं फिर से लिख देती हूँ, n+1 फैक्टोरियल n+1 into 1 less than n+1 that is n, you can stop it here as I told you, ठीक है ना। तो I am writing it n+1, ठीक है, n factorial minus n factorial, got it। now I can take common, if I'll take common it will give n+1 minus 1. From this part we have n+1 and from this part we have 1 only. So cancel out the factorial part. This is also cancelling out. It is 1 by n only and limit n tends to infinity. अब देखिए 1 by infinity 0 होता है and 0 indeterminate नहीं होता है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, गॉट इट, सॉरी ये सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जितना भी नंबर का फैक्टोरियल होगा उससे आपको डिक्रीजिंग जाना है एंड यू कैन स्टॉप दिस सीरीज एनीवेयर, 1 लेस देन जाके भी, 2 लेस देन जाके भी, जहां आप चाहें, ठीक है। अब इसी हाँ दैट्स इट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x³ minus 6 under root 9 plus 4x to the power 6. Okay, so it is limit x tends to infinity। अब देखिए x के हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना होता है। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें देखिए हाईएस्ट पावर रूट x ही है, इसलिए मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट x से ही डिवाइड किया था यहाँ पर, ठीक है। बट हमारे इस क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है वो x³ है एंड ये देखिए आपका अंडर रूट x6 है, तो ये एक्चुअली में x³ ही है, अंडर रूट है इसलिए ये x6 है। ओके, सो आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। यू कैन राइट here that I am dividing numerator and denominator. Okay, so it is 5x³ by x³ minus 6 by x³ divided by, देखिए यहाँ क्योंकि अंडर रूट है तो आप x³ नहीं x to the power 6 से डिवाइड करोगे, so it is 9 by x to the power 6 plus 4x to the power 6 by x to the power 6. Okay, so add the numerator it is 5 minus 6 by x³ and add the denominator it is 9 by x to the power 6 plus 4. Now if I'll put the value of x then it will give 5 minus 6 by infinity, anything by infinity is 0, by under root 9 by infinity, anything by infinity is 0 plus 4. Okay, so it is 5 and root of 4 is 2. Got it? So this is the solution. Now see, in the next question there is one difference, that is it is x tends to minus infinity। जब क्वेश्चन में आपको टेंस टू इंफिनिटी के प्लेस पे माइनस इंफिनिटी दिया हो तो यहाँ पर एक छोटा सा रूल लगता है। रूल ये है कि आप x इक्वल टू माइनस वाई कंसिडर कर लो, ठीक है, और यू कैन से y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए जो आपका x टेंस टू माइनस इंफिनिटी है, तो अगर आप इसे व्हेन x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, नो माइनस वैल्यू ऑफ x दैट इज इंफिनिटी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट को भी आप पॉजिटिव बना सकते हैं बाय अज्यूमिंग दिस
x की वैल्यू जब इन्फिनिटी रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, सो आई कैन से इट y टेंस टू इन्फिनिटी। अब सिंस यहाँ आप y टेंस टू इन्फिनिटी लिखे हैं, सो पूरे क्वेश्चन को आपको y के टर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर इज वाई स्क्वेयर माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस वाई प्लस 1 प्लस x is minus y, ठीक है। Now in the next step it is limit y tends to infinity y square plus y plus 1 minus y, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ आने के बाद आपको पता है क्या करना है। इस क्वेश्चन में अगर आप y की वैल्यू पुट करते हो तो ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। आप इसको रैशनलाइज करोगे एंड देन डिवाइड करोगे, ठीक है ना। सो लिमिट y tends to infinity under root y square plus y plus 1 minus y by under root y square plus y plus 1 plus y and again under root y square plus y plus 1 plus y, ठीक है ना। अब ये देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो आप इसको क्या लिखोगे, लिमिट y tends to infinity y square plus y plus 1 minus y and at the denominator under root y square plus y plus 1 plus y, ठीक है, minus y plus y. So at the numerator it is y square plus 1 and at the denominator it is under root y square plus y plus 1 plus y, ठीक है। इस पे आप लिमिट लिखोगे y टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप you have to divide by y square numerator and denominator and you can get your answer. तो यहाँ पर बस इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मेन रीजन यही था, जब भी आपका x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में क्या करना है समझ गए, अगर वो रैशनलाइज होगा तो रैशनलाइज करेंगे और अगर नहीं होगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ x से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ये हमेशा फ्रैक्शन में ही होता है, ठीक है। एंड इन दिस क्वेश्चन इफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी देन आपको ऐसे कंसिडर करके यहाँ पर पॉजिटिव लाना है, ठीक है, लिमिट को पॉजिटिव लाना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कन्वर्ट द होल इक्वेशन इनटू y एंड देन जो करते हैं रैशनलाइज करेंगे एंड देन हाईएस्ट पावर ऑफ y से डिवाइड करेंगे। गॉट इट, ओके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन x टेंस टू माइनस इंफिनिटी अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको वैसे ही करना है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। आई एम लीविंग दिस ऑन यू एंड आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले देखिए एक रूल है जो मुझे आपको सिखाना है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n plus 1 by 2. Okay. Similarly, sum of square of natural number is equal to n plus 1 to n plus 1 by 6 and sum of cube of natural number is n square n plus 1 square by 4. तो देखिए ये तीन फॉर्मूलेज है जो आपको यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं लिमिट्स में। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ओके, एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपको डायरेक्टली ये याद है तो अच्छी बात है, ये होगा n plus 1 by 2, सो इट इज n plus 1 by 2 एंड डिनोमिनेटर में एक n स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो वी हैव लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n plus 1 by 2n, ठीक है। अब यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ n इज n ओनली, सो वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, or you can simply divide this n only, okay. So it will give 1 plus 1 by infinity is 0 by 2, so it is 1 by 2.
क्वेश्चन बहुत इजी था, बट आपको यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अगेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो n+1 2n+1 by 6. सो आई एम पुटिंग दी formula directly. It will give n+1 2n+1 by 6 and here n to the power 4. तो सिंपली ये n³ तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 2n+1 by 6n³। तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ n³ है, तो आप n³ करोगे, बट उससे पहले आप न्यूमरेटर के दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो इट विल गिव 2n² + n + 2n+1 by 6n³. Got it? So it is limit n tends to infinity 2n² + 3n+1 by 6n³. ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में n³ होगा, ठीक है, n³ होगा, n to the power 4 नहीं होगा। तो यहाँ आपका 6n³ on cancelling out it will give 2. okay, so it is 6n² at the denominator. देखिए नीचे कभी भी पावर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो गई थी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड वी हैव 6n² एट द डिनोमिनेटर, सो 1/6 को आप बाहर लिख दीजिए एंड दिस n² विल डिवाइड ईच ऑफ द न्यूमरेटर टर्म ऑफ न्यूमरेटर। सो इट इज 2n² by n² plus 3n by n² plus 1 by n²। गॉट इट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये n to the power 3 होगा, ठीक है ना। नाउ इट इज 1/6 2 plus 3 by n plus 1 by n², ठीक है ना। एंड हेयर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या रह जाता है हमारे पास 1/6 into 2. नाउ 3/∞ 0, 1/∞ अगेन 0, सो वी आर लेफ्ट विथ 2/6 दैट इज 1/3, ठीक है ना। इस फॉर्मूले बेस्ड मैंने क्वेश्चन नहीं किए हैं, ठीक है, हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर पे किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आई एम लीविंग फॉर यू बिकॉज इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ in the next video we will discuss about few more methods. मैंने आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा दिया है, फैक्टराइजेशन मेथड समझा दिया है, रैशनलाइजेशन मेथड हो गया है, स्टैंडर्ड लिमिट हमने कर लिया है, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्राइक लिमिट एट इंफिनिटी ये हमने अभी किया है, ठीक है। सो वी हैव 2 more मेथड्स, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।